हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करना होता है थ्रू आउट द बॉडी। सो द ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स। ये ट्यूब्स हैं जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में। हार्ट ब्लड को पंप करता है इन ट्यूब्स के अंदर एंड दीज ट्यूब्स, ये ट्यूब्स जो हैं सप्लाई करते हैं ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टिश्यू, सेल्स एंड अदर ऑर्गन्स। एंड वहां से ब्लड को देन आफ्टर इट ट्रांसफers the oxygen, nutrients and other hormones and chemical substances to the body cells or tissues. After that it takes away the deoxygenated blood from those cells and return it back to the heart. So heart से blood लेके जाना और heart में वापस लेके आना blood को, ये blood vessels का काम है। और blood vessels, they are important as they are part of the circulatory system. We talk about the circulatory system, right? Circulatory system is composed of three parts: blood, right? Blood vessels and a pump called heart. We have talked about blood, we have talked about heart. In this video we will talk about the blood vessels. So around, अगर देखो बॉडी में देखा जाए तो 60,000 मील तक ये इनका लेंथ चला जाता है ब्लड वेसल, मतलब इतनी लंबाई में ब्लड वेसल्स जो हैं फैले हुए हैं। सो ब्लड पंप्स blood through an estimated 1 lakh kilometer of blood vessels, and these blood vessels, they form a closed system, a circuit kind बना लेते हैं that carries blood away from the heart, transports it to the tissues of the body and then returns it to the heart. Heart से लेके गए and then वापस heart में लेके आए. And there are three major types of blood vessels, that are the arteries, that are the veins, that are the capillaries. Let's talk about this. So we have our heart here. If I talk about this is heart. Some blood vessels, what do? They take this oxygenated blood. This is an oxygenated blood, okay? To the, these are the, so these divide. Actually, these blood vessels divide into various categories. Now, one of them, if I consider one of them, this is an artery. This is also an artery. So this is basically a major artery. This artery, it forms a thin, this kind of, this kind of system, and then we have this blue colored system. So what I'm drawing here, I'm drawing, so these blood vessels, let's look at these blood vessels. What are these doing? These blood vessels, they are taking the blood away from the heart. Okay, so we call them arteries. Arteries are basically, they take blood away from heart. अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ब्लड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। जो ब्लू है, ब्लू इंडिकेट्स कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, रेड इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो दिस इज आल्सो टेकिंग द ब्लड इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज आल्सो एन आर्टरी। ओके, सो व्हाट हैपेंस दैट there are certain blood vessels that take the blood away from the heart. These are known as the arteries. These arteries, when they reach this tissue, these arteries disappear and the blood now enters these very small blood vessels, very thin walled blood vessels. These are the capillaries. आर्टरीज में क्या होता है? आर्टरीज में केवल ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है मटेरियल का।
कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है मटेरियल, जैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाए, ग्लूकोज का एक्सचेंज हो जाए, सर्टन हार्मोन्स का एक्सचेंज हो जाए। सो ये कैपिलरीज ये बिल्कुल थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं दैट अलो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। देन आफ्टर डिफ्यूजन हो गया, सब चला गया, देन then the blood goes into another kind of blood vessel which we called as the veins. ये vein क्या करती हैं? They carry deoxygenated blood mostly. Why I'm saying mostly? Because here if I see this is also a vein, this vein is carrying the oxygenated blood, and this artery is carrying the deoxygenated blood. So definition of artery and veins is not that they carry the oxygenated or deoxygenated blood. Definition is this, that arteries are the blood vessels that take the blood away from the heart. Veins are the blood vessels that take the blood towards the heart. Now, most of the arteries, they, except one kind of artery, that are the pulmonary artery. This is a pulmonary artery. All the arteries carry oxygenated blood except this pulmonary artery. All the veins carry the deoxygenated blood except this pulmonary vein. Okay, so this is how the arteries and veins are there. From the heart arise the arteries, enter their capillaries, and capillaries, after capillary blood enters the veins which carry the deoxygenated blood. Now we will study their anatomy, how they are made up of. So all the blood vessels, like the arteries and veins, not the capillaries, they are made up of three kind of layers. First one, the internal, then medium, tunica, media. Tunic is basically the layers. Tunic is the layer. So we call it tunica interna because it is internal. Like if this is the, this is what? This is the lumen. Lumen समझते हैं ना? हाँ, खाली जगह. तो then ये जो पहली layer बनेगी, this layer we call it the tunica media. Sorry, tunica interna. Then the second layer that will be here, we call it tunica media. Then the last layer, that is the outermost layer, that is the external most layer, we call it tunica externa. Okay. Now what we have to learn about these layers? We don't have to learn a lot. The tunica interna is made up of, first of all, it is made up of these kind of cells. ट्यूनिका, अगर हम इस ट्यूनिका इंटरना को खाली इसको देखें तो ये इस तरह से ल्यूमन होता है बीच में, और इसके ऊपर ये फ्लैटन से सेल्स होते हैं, सिंपल स्टेमस एपिथेलियम के. ओके, so this is what? This is tunica. This is endothelium. So it is made up of endothelium. Then endothelium के बाद एक basement membrane होती है जिन पे ये cells rest कर रहे होते हैं. We have a basement membrane. After basement membrane, there is an inner elastic lamina. What is this inner elastic lamina? So let me first change this. This is the basement material. Okay, if I draw it here, then this is the basement membrane. Then there is a plate. There is basically this area. This is a plate which has certain pores. Not like this way. If longitudinal section में देखेंगे, जब मैं longitudinal देखूं तो कुछ इस तरह से होल्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं प्लेट को इलास्टिक लैमिना. बेसिकली इलास्टिक लैमिना क्या जा रहा है? इस ट्यूब के बाहर भी एक लेयर होगी ना ट्यूनिका. अगर मैं अच्छा ब्लड वेसल को ऐसे डिवाइड कर दूं, दिस इज ट्यूनिका इंटरना, देन सेकंड इज ट्यूनिका this is tunica media, and then last one. So यहाँ पे पहले तो अंदर की तरफ होंगे सेल्स होंगे, है ना, एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं. सेल एंडोथेलियल के बाहर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद एक शीट होती है जिसमें पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लैमिना. ये इलास्टिक लैमिना क्या कहता है? इन पोर्स के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड, बिटवीन द ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया. ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया के बीच में, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं तो यहाँ पे पोर्स वाला होता है इलास्टिक लैमिना, इसको बोलते हैं इनर इलास्टिक लैमिना. देन ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना के बीच में भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल
या आउटर इलास्टिक लैमिना, इसका भी सेम ही काम होता है। दिस इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो लेट अस टॉक अबाउट द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना के बारे में हमने जाना कि ये जो है ल्यूमन के बाद जो पहली लेयर है दैट इज द ट्यूनिका इंटरना। नाउ ट्यूनिका इंटरना की पहली लेयर होती है एंडोथीलियम विच इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोकार्डियल, मतलब जो सिंपल कॉन्टिन्यूस होती है। हार्ट का जो एंडोकार्डियम होता है और जो एंडोथीलियम होता है ट्यूनिका इंटरना का, वो अलग अलग नहीं होते, दे आर कॉन्टिन्यूस विद ईच अदर, ठीक है, बीच में कोई ऐसा बैरियर नहीं होता, दे आर जस्ट सिंपल प्लेन एक ही तरह के होते हैं। देन सेकंड कंपोनेंट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या कहता है, बेसिकली इन सेल्स को कहीं तो रुकना है ना, ये सेल्स कहीं तो अटैच होंगे, तो इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स कौन से होंगे, सिंपल स्क्वेमस सेल्स। और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूनिका इंटरना देयर इज लैमिना, इलास्टिक लैमिना, इस पे एक ओपनिंग्स होती हैं दैट फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल थ्रू ट्यूनिका इंटरना टू थिकर ट्यूनिका मीडिया। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम देखो, दिस इज बेसिकली दिस लेयर दिस इज व्हाट एंडोथेलियम, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा जो हमें दिख नहीं रहा, ये बेसिकली ये येलो वाला। एंड देन दिस लेयर दैट इज, एंड ये होल है, ये जो बीच में डार्क से दिख रहे हैं दीज आर द ओपनिंग्स। ये ओपनिंग्स क्या कहते हैं, इस ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया के बीच में एक्सचेंज तक में हेल्प करता है। सो ट्यूनिका इंटरना, दिस इज ऑल अबाउट ट्यूनिका इंटरना। देन वी हैव ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या होगी, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, जैसे इसको मैं बोल दूं ट्यूनिका इंटरना, देन एक लेयर होती है, देन वी हैव अ लेयर जिसमें बहुत सारा स्मूथ मसल, इसमें बहुत सारा स्मूथ मसल्स दिख जाएगा, स्मूथ मसल्स बहुत सारा दिख जाएगा, बहुत सारा। आर्टरीज में तो बहुत ज्यादा होता है, वेन्स में थोड़ा सा कम होता है। एंड देन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, और बीच बीच में ऐसे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। Now what is these smooth muscles doing? These smooth muscles are very important. जो हमारे आर्टरीज होती हैं, they can contract, का मतलब क्या है, ल्यूमन को छोटा करना, डायलेट कर सकते हैं, ल्यूमन को बड़ा करना। क्यों, अगर देखो किसी साइड पे इंजरी हो रही है, राइट, इंजरी हो रही है, देन वी हैव टू we want to prevent the over excessive bleeding, हमें ब्लीडिंग को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, उस तरफ अगर किसी तरह हम ब्लड फ्लो को रोक लें तो बाहर ब्लड कम बहेगा, राइट, तो उस समय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये क्या करता है, ब्लड जो वेसल्स हैं उनके ल्यूमन को छोटा करता है, जिससे कम ब्लड वहां पे जाता है, और कम ब्लड जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली जितना कम ब्लड जाएगा उतना ही ब्लीडिंग से रुक जाएगा। वैसोडाइलेशन क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात की, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एग्जाम्पल दिया है कि जब हमें ब्लीडिंग को रोकना हो, तो दिस इज एन मैकेनिज्म टू कंट्रोल ब्लीडिंग। जैसे हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा, तो ये भी एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिससे ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या था, ब्लड वेसल का नैरो पहले इतना था, अब इतना हो गया, नैरो इतना डायलेट हो गया, तो ये इसका क्या काम हो जाए, देखो जब किसी टिश्यू में मानो एक मसल सेल है, इसमें मसल सेल में क्या हुआ, बहुत सारा हमने क्या किया, एक्सरसाइज किया, तो लैक्टिक एसिड बन गया, राइट। अब इस लैक्टिक एसिड को क्या करना होता है, लैक्टिक एसिड को ज्यादा, इस लैक्टिक एसिड को हमें कहें तो इसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं ना, तो इसको एक बफर करना होता है, क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो सेल कैन डाई, मसल सेल्स कैन इवन डाई, तो बफर करने के लिए हमें कुछ बाइकार्बोनेट आयंस चाहिए होंगे और बेसिकली अदर आयंस चाहिए होंगे, तो वो सब किस में, ब्लड में। तो हमें चाहिए कि इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए ताकि ये लैक्टिक एसिड बफर हो जाए, लैक्टिक एसिड जो है वो बफर हो जाए, तो इसलिए इस जगह पे वैसोडाइलेशन हो जाता है ताकि मोर ब्लड यहाँ पे आ जाए, जितना ब्लड ज्यादा होगा उतने ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बफर दिस लैक्टिक एसिड। सो दिस इज द वर्क ऑफ ट्यूनिका मीडिया। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। So tunica media is composed of elastic fibers and smooth muscles that vary in amount in different vessels. Arteries में ज़्यादा होंगे, vessels में बहुत कम होंगे. Okay. And then what do we have? It is responsible for vasodilation and vasoconstriction. And yeah, इसके बाद में कौन सा lamina होगा? External elastic lamina, which is part of the tunica media, and it helps in the exchange of material between the tunica media and tunica externa. नाउ ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये लास्ट वाली लेयर है, कुछ नहीं, इसको कोई एडवेंटिशिया भी बोल देता है कोई। ओके, कोलेजन फाइबर्स होंगे प्लस कुछ इलास्टिक फाइबर्स होंगे,
काम क्या होता है इसका, अटैचमेंट में मदद करता है, अटैचमेंट टू द सराउंडिंग टिश्यू। जिस टिश्यू में ये ब्लड वेसल्स है उस टिश्यू में ब्लड वेसल को अटैच करने का काम ये कोलेजन फाइबर की मदद से करता है। प्लस इसको बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है, राइट, और ब्लड सप्लाई होती है। और आप याद रखोगे कि अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा हो, तो ये क्या करता है, इस नर्व सप्लाई के थ्रू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, एक तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, जितनी तेज से ब्लड जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, राइट, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो किस सेंस में होता है, लोकलाइज्ड ब्लड वॉल्यूम कम होता है। पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में तो ब्लड वॉल्यूम कम नहीं कर सकता ना ब्लड वेसल। सो लोकली किसी रीजन में हमें ब्लड नहीं चाहिए क्योंकि वहां से ब्लीड हो सकता है ब्लड, तो उसके लिए वहां पे लोकली ब्लड वॉल्यूम कम करना पड़ता है। दैट इज थ्रू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दैट कॉज द vasoconstriction. Okay, so tunica externa is outermost covering of the blood vessel. Tunica externa consist of elastic and collagen fibers. Numerous nerves and blood vessels होती हैं। अच्छा, अब blood vessels को भी तो कोई blood vessel चाहिए ना, blood vessel के भी different different components, उसमें भी endothelial cells हैं, उसमें भी अलग अलग connective tissue है, तो उस connective tissue को blood से supplies चाहिए होती हैं। तो कुछ blood vessels जो blood vessel को supply करते हैं उन्हें हमें बोलते हैं vasa vasorum. These are the blood vessels which supply the blood vessels, so इनको vasa vasorum बोलते हैं, important है। सो एक्सटर्नल हेल्प एंटर द ब्लड वेसल, यही लिखा होगा। डिफरेंस इन आर्टरीज हम इस बाद में पढ़ते हैं, पहले यहाँ स्ट्रक्चर देते हैं। ये जो अंदर वाला देख रहे हो, दिस इज ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना में सबसे पहले क्या था, एंडोथीलियम, ये इसका एंडोथीलियम है, ये इसका एंडोथीलियम। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन मानोगे तो ये भी सही है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो येलो वाला दिख रहा है, राइट। एंड देन दिस इज इलास्टिक लैमिना। आप देखो जो इलास्टिक लैमिना आपको वेन्स में नहीं मिल रहे हैं, राइट, तो इलास्टिक लैमिना वेन्स में रिड्यूस्ड और एब्सेंट होते हैं, राइट। देन दिस पोर्शन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, दिस इज नोन एज द ट्यूनिका मीडिया। यहाँ पे भी ट्यूनिका मीडिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन में देखो, ट्यूनिका मीडियम ऑफ आर्टरीज इज मच मोर देन द ट्यूनिका मीडियम ऑफ वेन्स। व्हाई, why the tunica media is much more in length, or why arteries are more thick than veins? Because arteries has to आर्टरीज को प्रेशर को झेलना होता है। हार्ट कितनी तेज, कितनी जोर से, कितने प्रेशर के साथ जो है ब्लड को पंप करता है। तो अगर आर्टरीज ही थिन होगी तो आर्टरीज तो फट भी सकती हैं भाई, है ना। तो आर्टरीज को इतना रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि उनमें ब्लड जब फ्लो हो तो उनमें ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े, उनमें डायलेशन ना हो, कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब फैक्टर ना हो। तो इसलिए आर्टरीज आर थिक वॉल टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ब्लड, राइट। सो दैट इज वाई इट इज वेरी थिक। सो दिस इज ट्यूनिका मीडिया, जिसमें मसल फाइबर्स और बीच बीच में ये इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे, राइट। देन दिस इज द एक्सटर्नल लैमिना, एक्सटर्नल लैमिना, इलास्टिक लैमिना, जिसमें कि ये पोर्स हैं। these pores are exchanging the material, helping the exchangement of material between this. And then last, this one is the tunica externa, made up of collagen fibers plus elastic tissue. यहाँ पे भी यही है, tunica externa है, this is tunica media, और ये ट्यूनिका इंटरना बताया। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर कोई फ्लैप नहीं है, लेकिन जो ट्यूनिका इंटरना है अपने वेन्स का, वो मॉडिफाई होता है और बीच बीच में ये फ्लैप्स बनाता है, या वॉल्व्स कह लो। व्हाट डू दिस डू, दे हेल्प इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। देखो आर्टरीज में तो पीछे से पंप है, हार्ट है, तो वो ब्लड तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वेन्स में तो ब्लड पीछे पंप नहीं है ना, वो तो कैपिलरीज से ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं अपने आप में। तो कैपिलरीज में तो ब्लड का प्रेशर कुछ नहीं होता, जैसे ये कैपिलरी से आ रहा है, तो इनके पास कहाँ से प्रेशर आएगा, राइट। तो ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल, जब इनको बाहर से हम चलते फिरते हैं, टांगे हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड ऊपर को पुश होता है, जैसे यहाँ पे हार्ट है तो इस तरफ जो है पुश हो जा। अब जब पुश हो जाए ब्लड एक बार यहाँ पे आ जाए, तो अब ये ब्लड पीछे ना जाए, इसलिए ये वॉल्व्स हैं, ये क्या करते हैं, दीज वॉल्व्स help in one directional movement of blood towards the heart in veins. Okay, so this was about arteries and veins. If you need a difference between arteries and veins, so these are thick walled. Why? Because they have to overcome the resistance. This is thin walled because there is no such resistance.
यहाँ पे वॉल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी, ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन। और क्या इसमें डिफरेंस देखेंगे हम। बाकी हम थिक, ये थिक ट्यूनिका, मीडिया थिक ट्यूनिका, ये सब लिख सकते हैं इसमें। ओके, सो आर्टरीज आर लाइक, और भी बहुत सारे बता सकता हूँ। देन लेट अस कम टू द कैपिलरीज। व्हाट आर द कैपिलरीज? कैपिलरीज आर नथिंग बट दीज आर द शॉर्टेस्ट, दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि इनको डिफ्यूजन करना है। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे सिंपल स्केमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड सिंपल स्केमस। ऐसे ही इस साइड हो रहा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, then these are the simple stemous cells. So here, from here, if this is a body cell, if this is a body cell, diffusion of substances can take place. Okay, this is blood, this is interstitial fluid or space. So this is what a capillary, this बाहर है बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ है कैपिलरीज। एक्सट्रीमली थिन एंड मॉडिफाइड, इनका स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन हो सके। द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज इज वेल suited to the function as exchange vessels because they lack both a tunica media, tunica externa, only tunica interna is present basically, and that also elastic lamina lumina कुछ नहीं है इसमें, केवल एंडोथेलियम है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बिकॉज कैपिलरी वॉल्स आर कंपोज्ड ओनली ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, सिंपल स्टेमस एपिथेलियम, and basement membrane or substance in the blood must pass through just one cell layer to reach the interstitial fluid and tissue cell. Exchange of materials occurs through the wall of capillaries and widening of venules. The walls of arteries, arterioles, mostly venules and veins present are too thick a barrier. So basically क्या होता है, आर्टरीज जो हैं दे आर आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती हैं और ये आर्टेरियोल्स कैपिलरीज में होती हैं। देन वेन्यूल्स अराइज होती हैं, वेन्यूल से वेन्स बनते हैं, ये वेन्स सप्लाई करते हैं ब्लड टू द हार्ट, और ये आर्टरीज जो हैं दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलेशन. So with this, I think everything is clear to you now. What is meant by blood vessels? What are the types of blood vessels? And what are the structural differences in the blood vessel? Thank you for watching this video. If you find this video helpful, do consider subscribing this channel. Thank you for watching.